हाथ इन लोगों का बांध करके इनको मारा गया। और केरल से क्या धमकी मिला है? कोई ना बात सुना था, मार रहा था। मुसलमान लड़की बालिग है, एक हिंदू लड़के से शादी करना चाहती है। Namaste. This is Swati Goyal Sharma for Rashjyoti. You often hear English media and so-called human rights activists complain that India is no land for interfaith relationships. This means that if a man and a woman belong to different religions, our intolerant society and draconian laws make it extremely difficult for them to marry or live together. However, this narrative is pushed for a specific type of interfaith relationships only. That is, when the man is Muslim and the woman is non-Muslim. On the other hand, the on-ground reality is that it is the reverse kind of interfaith relationship that finds extreme resistance not only from the society but also from the police. And it's been like that for years. As reported by me, many such cases have ended up in murders. Today, I bring to you a case from Bihar's Begusarai district where a Hindu man and a Muslim woman, both adults, wanted to marry but the police did everything they could to stop it. First, let us listen to the woman making a shocking revelation on camera that one of her bhabis living in Kerala instructed the family to kill the couple, and throw their bodies on railway tracks in order to get rid of them. इन्होंने कॉपी किताब लेकर के राजीव नामक लड़के को केवल अपने घर पर बुलाया तो उसके साथ मारपीट हुई। आपको भी मारा पीटा गया? जी। और राजीव को किन चीजों से मारा गया? डंडा से मारे। डंडा से मारा गया। जानलेवा हमला हुआ? बांध दिया था पीछे। क्या हुआ? हाथ को हाथ पीछे बांध दिया था। हाथ इन लोगों का बांध करके इनको मारा गया। और केरल से क्या धमकी मिला है? केरल से मेरी भाभी है, संजनी है। अच्छा, वो जुड़ी हुई है वहाँ से? हाँ। उन्होंने क्या धमकी दिया? हमने बोली कहा कि मार के फेंक दीजिए, वहाँ स्टेशन है, ट्रेन हाँ। चलता है वहाँ पे। आपकी भाभी ने बोला केरल से कि मार करके फेंक दीजिए। हाँ, काट के फेंक दीजिए। तो आपका भाई लोग आपको मारने लगा यहाँ? हाँ, भाई मेरा मुमताज यहाँ पे है। मुमताज? ललन यादव मतलब जो है ना, उसके साथ ही रहता है। कुछ भी होता है ना तो तुरंत ही कर देता है। इसलिए वहाँ से पुलिस स्टेशन से कोई भी नहीं आया देखने के लिए। तो अभी लड़का जेल में है? हाँ। मतलब थाने में है? हाँ, बोला छोड़ देंगे, 1 घंटा में, अभी तक नहीं छोड़ा। The case went like this. Chanda Bibi, who is 19, liked a guy named Rajiv, who belongs to a scheduled caste and is also an adult. One day, when Rajiv came over to her house to hand over some examination notes, her family tied him up and beat him up badly. Scared that her family would kill him, Chanda consumed rat poison. She was immediately taken to a hospital. Rajiv, on the other hand, was taken to the police station where police kept him in the lockup all night. In the hospital, Chanda repeatedly requested officials to record her statement and let her go with Rajiv. She said she did not want to go with her family, but police failed to do so and instead sent her to a government shelter home. It was only after the intervention of some Vishwa Hindu Parishad activists that the police followed the procedure. They recorded her statement in the hospital and then recorded her statement in the police station. Despite that, they let her go only after the activists staged a protest. Chanda and Rajiv are now married. I have with me BHP the activist Shubham Bhardwaj from Bihar who handled the entire case. हमारे साथ हैं शुभम भारद्वाज। शुभम भारद्वाज विश्व हिंदू परिषद के लीडर हैं। तो शुभम, आपने पूरा केस शुरू से लेकर हैंडल किया। प्लीज आप पहले बताइए कि ये केस आपको पता कैसे चला और उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, पुलिस का रवैया कैसा रहा? ऐसी घटनाएं महीने में 8-10 तो मिनिमम आ ही जाती हैं हमारे पास, हमारे संपर्क में। लेकिन ये जो घटना था ना, ये थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि राजीव पासवान, जो लड़का जिसकी शादी होने वाली थी, उसने फोन करके मदद मांगा कि जिससे हमारी शादी होने वाली है उसके साथ मारपीट हुआ है, उसके परिवारजनों ने उसके साथ मारपीट किया है, केरल से धमकी आई है कि मार करके लड़की को फेंक देना है। तो ऐसे करके उसने हमें इसका सूचना दी है। बाद में हम लोग फॉलो अप करने के लिए सदर हॉस्पिटल गए। सदर हॉस्पिटल में मालूम चला कि एक ओडी स्लिप होता है, कोई जहर खा के आया है या कोई शराब पी के आया है या कोई एक्सीडेंटल केस है। तो उसका नियम कुछ इस प्रकार होता है कि वो पहले एडमिट होते हैं और बाद में पुलिस को एक ओडी स्लिप भेजा जाता है। हॉस्पिटल के द्वारा वो बिल्कुल नहीं उस नियम का पालन किया गया। हम लोग वहां पर गए, डॉक्टर से बात की और फिर ओडी स्लिप भिजवा, लड़की का फर्द बयान हुआ। और पुलिस का रवैया जहां तक बताएं तो जो स्थानीय
थाना है, यानी जहाँ ये घटना हुआ है, यानी कि साहेबपुर कमाल थाना, वहाँ के थाना प्रभारी के द्वारा बिल्कुल भी सहयोग या बिल्कुल भी कानून का पालन नहीं किया गया। ये लड़का राजीव रात में करीब 10 साढ़े 10 बजे या कुछ 11-12 बजे लड़की ने नोट्स लेके बुलाया था, नोट्स दे रहा था घर के बाहर से, खिड़की से उसको पकड़ के मारा गया। लड़की को मारा गया, लड़की अपना और राजीव का जान बचाने के लिए ज़हर खा ली। बाद में पुलिस को उस वक़्त फ़ोन की। पुलिस उसके परिवारजनों यानी लड़की के परिवारजनों को पनिश करने या रोकने की जगह सीधे राजीव को अरेस्ट करती है, उसको लॉकअप में बंद करती है और पूरा प्रयास करती है कि इस लड़के के ऊपर हम कुछ धारा-वारा लगा करके उसको जेल भेजें। बाद में वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ता इसके ऊपर पुलिस के ऊपर बताए कि ऐसे-ऐसे लड़की बालिग है, तो लड़की का आईडी प्रूफ रख लिया था परिजनों ने, किसने? हमारे पास अच्छा। परिजनों ने। हुँ, पुलिस हुँ, को हम लोग जब फ़ोन करते कि लड़की बालिग है, तो आपके पास क्या प्रूफ है लड़की बालिग है? बाद में हुँ, बहुत मेहनत से हम लोगों ने एक मशीन लगा करके उसका आधार कार्ड निकलवाया, उसका उसके हुँ। फिंगरप्रिंट से हॉस्पिटल में बायोमेट्रिक मशीन। फिर नेक्स्ट डे उसके कॉलेज ओह! से हाँ जी। नेक्स्ट डे उसके कॉलेज से हम लोगों ने उसका 10th का सर्टिफ़िकेट, 12th का सर्टिफ़िकेट, बाकी अलग-अलग उसका जो आधार कार्ड वग़ैरह होता है, सब निकलवाया। लेकिन जब हम लोगों ने पहले आधार कार्ड निकलवाया तो पुलिस के द्वारा ये स्पष्ट कहा गया कि आधार कार्ड इज़ नॉट अ लीगल प्रूफ, ये कोई लीगल प्रूफ नहीं है, आप पहले कॉलेज का या कोई और बर्थ सर्टिफ़िकेट लाइए। हुँ, लड़की बोली हम बालिग हैं, हम लड़के के साथ जाना चाहते हैं। उसको महिला बाल सुधार गृह भेजा गया, जैसे कोई क्रिमिनल है या कुछ हुँ, ऐसा है। पुलिस के पास जब बात किया जाता तो पुलिस के द्वारा ये कहा जाता कि हमने इसका ठेका थोड़ी लिया है। लड़की अगर शादी की रहती फिर जाने देते। लड़की का कहना था हुँ, सर छोड़ोगे तब तो शादी करने जाएँगे। हुँ। लेकिन स्थानीय पुलिस के द्वारा नहीं सुना गया। बाद में हम लोग बेगूसराय एसपी से बात की है। उन्होंने फिर बोला कि जो कानून संगत होगा करेंगे। अगले दिन हुँ। बहुत संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता रोड पर आए और फिर अच्छा, हम लोगों ने आपने स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन भी किया वहाँ पर? हाँ, स्ट्रीट डेमोंस्ट्रेशन मत कहिए लेकिन हॉस्पिटल में या फिर थाने पे हम 100, 50, 100 अच्छा। ऐसे हम लोग वहाँ पे जाते रहे। तो स्थानीय थाना का वैसा कोई सहयोग नहीं रहा लेकिन जिला पुलिस का बाद में वो हमारे प्रेशर के वजह से या आपके ट्वीट की वजह से इन प्रेशर की वजह से वो बाद में बात सुने हमारा। हाँ, मैं तो लगातार जैसे-जैसे आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे थे जी, कि डॉक्यूमेंट्स यू वर प्रोवाइडिंग मी डॉक्यूमेंट्स उनको मैं ट्वीट कर जी, रही थी और मुझे ये भी पता था कि उसके बिना ये स्थानीय खबरें होती हैं, उस पे ज़्यादा एक्शन ये लेते नहीं हैं। तो बिल्कुल। शुभम अगर पहले तो मुझे बताइए कि अगर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इसमें पिक्चर में ना होता, तो आपको क्या लगता है ये केस क्या टर्न लेता? लड़की को लेने के लिए 70 से ज़्यादा उसके परिजन हॉस्पिटल पहुँच गए थे। मोर ओह! देन 70 पीपल हाँ, वहाँ पे उसको अच्छा। घेर करके और उसको ले जाने का प्रयास किया। बाद में हम लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया कि लड़की हुँ, जाना नहीं चाह रही है, ये क्रिमिनल केस है। तो उसी में पुलिस ने कहा कि ओडी स्लिप नहीं आया, फिर हम लोगों ने नियम का ओडी स्लिप भिजवाया और फिर उसको पुलिस की वहाँ पे सुरक्षा दी गई। हमारे कार्यकर्ता सुरक्षा में लगे रहे। यहाँ तक कि इसका रिज़ल्ट क्या होता मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजूँगा। उसके पड़ोसी यानी जो मुसलमान समाज के लोग हैं, वो लगातार लिख रहे हैं कि बजरंग दल अगर इसमें इंटरवेन नहीं करता, अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, तो ये 100% दावा के साथ हम कहते हैं कि हम लोग ये शादी होने नहीं देते। ये वो लोग खुद आपस में लिख रहे हैं, हमारे पास स्क्रीनशॉट आ रहा है। हुँ। और शुभम आपको भी कुछ धमकी भरे तब से मतलब थ्रेट्स सोशल मीडिया पर आ रहे हैं इस पूरे सालों इंसिडेंट के बाद क्योंकि आपने एक कंसेंसुअल एडल्ट एक कपल की शादी कराई है जस्ट बिकॉज लड़की मुस्लिम है। रात में भी एक कोई खान करके है, नाम भी इनका ऐसा उल्टा-पुल्टा मैं बोल नहीं पा रहा। इनके द्वारा लिखा गया है कि 4 दिन के भीतर बिहार छोड़ दो नहीं तो गोली मार देंगे। फिर मैं ओह! किशनगंज यानी कटिहार विभाग का 4 जिला है, कटिहार, हुँ, किशनगंज, बारसोई और नौगछिया, इसका मैं प्रभारी हूँ संगठन का। तो हुँ। इसमें लिखा है कि किशनगंज में जैसे हम गाय काटते हैं, शुभम भारद्वाज तुम किशनगंज आओ तुमको गाय की तरह काटेंगे। तो गिदड़ ओह! भक्तियों से डरने वाले नहीं हैं, ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, सामने से कोई वार नहीं करता। और शुभम लड़का राजीव पासवान है, नाम से ही पता चलता है, वो एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से है और तभी उसके ऊपर ये एट्रोसिटी हुआ। कैसा है राजीव और अब आपको क्या लगता है कि उसका वहाँ पर रहना कितना उचित है? क्या वो सेफ है वहाँ पर?
अभी तो राजीव बेगूसराय में है नहीं, अभी कहीं अलग अलग जगह रह रहा है। वो बलिया में ऑटो चलाता है, अभी ऑटो ऑटो बेचने का वो सोच रहा है कि ऑटो बेच करके हम दिल्ली या मुंबई या डर की कहीं वजह कोई से, भी इसी डर की वजह वजह से। डर के वजह से हम लोग कितना सुरक्षा उसको दे सकते हैं। अभी हमारे पास बैठा है तो ठीक है, घर जाएगा तो हमला हो ही सकता है। ये लोग लिख भी रहे हैं, लड़के को रात में 3 बजे तक बांध करके रखे रहे तो 3 बजे मार के फेंक देना चाहिए, छोड़ क्यों दिए। तो गरीब परिवार का लड़का है, वंचित समाज का लड़का है, डरा हुआ है और कोई भी तरह का सरकारी मदद उसको नहीं मिल रहा, कोई भी तरह का सुरक्षा नहीं मिल रहा। तो प्रेशर में है राजीव, और लड़की को भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जिस दिन उसकी शादी थी, वो बहन जो है वो बोल नहीं पा रही थी। उसको चला नहीं जा रहा अच्छा। था, इतना मार उसके उसकी माँ ने, उसके भाई ने और उसकी भाभियों ने उसके साथ मारपीट की थी। ओवरऑल मतलब आपके इंटरवेंशन की वजह से इस केस में वो तो हुआ जो लड़का और लड़की चाहते थे, दोनों एडल्ट हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद खतरा कपल के ऊपर भी बना हुआ है, आपके ऊपर तो है ही। चलिए शुभम, ये जानकारी शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एंड आई विश यू सेफ्टी एंड आल्सो होप द कपल रिमेन सेफ, वो जहाँ भी हैं। बहुत 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 धन्यवाद आपका। ठीक है शुभम, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू।